my dear students, welcome in your English grammar class. Here in this class, my dear students, we are going to start chapter number 15th of your book, and the name of the chapter is preposition. So यहाँ पे हम prepositions जानेंगे. So preposition क्या है, कैसे पहचानते हैं, कैसे preposition help करते हैं हमें किसी object की position को find out करने के लिए. ठीक है, कोई भी object कहाँ पे है तो हमें कैसे पता चलेगा? With the help of prepositions. So आइए जानते हैं कैसे हैं. स्टार्ट करेंगे वही चीज पैराग्राफ से. सबसे पहले आपके लिए पैराग्राफ लिखा है तो सबसे पहले हम पैराग्राफ पढ़ेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्या लिखा है देखिए, Maya's cat was missing and she started looking around the house. उसकी क्या मिस हो गई और वो देख रही इधर उधर कहीं तो उसको मिले. But she opened her closet and looked inside, but the cat was not there. वहाँ पे भी cat नहीं थी. She went to the bedroom and crawled on the floor to look under the bed. भी देखा. She searched in the kitchen and bathroom but found nothing. हर जगह देखा, bathroom, kitchen कहीं नहीं मिली. Since her cat would not be seen anywhere inside the house, Maya decided to go outside to give a try. उसने कहा घर में तो कहीं नहीं दिख रही, चलो कहीं बाहर जाके देखें, क्या पता बाहर हो. ठीक है, फिर उसके बाद में वो कहती है she just as she was about to open the door. जैसे वो ओपन करने वाली थी डोर, the doorbell rang. और डोरबेल रिंग होती है. Just as she was about to open the door, the doorbell rang. और डोरबेल बजती है. ठीक है, it was her neighbor, Mrs. Meera. मीरा थी नेबर. Mrs. Meera pointed at the top of the nearby tree. मीरा ने top of the tree की तरफ point out किया. Look, Maya, your cat is in the tree. उसकी cat है tree पर. ठीक है, Mrs. Meera began to describe how she found the cat. उसने describe किया कि कैसे उसको वो cat मिली. ठीक है, according to her, she was cleaning the windows when she heard a noise coming from the tree in front of the house. She looked up and saw the cat on one of the branches high above the ground. Instead of ignoring the cat, Mrs. Meena decided to tell Maya. Thanks to Mrs. Meena's help, Maya was able to rescue it. और माया ने उसको रेस्क्यू किया. So अब ये जो कलर वर्ड पढ़े, up, at, in, on. So in the above given text, the color words are your prepositions. They are used before a noun or a pronoun to show time, place, position and methods. So देखिए क्या लिखा है. Speaking skill में answer these questions based on the given text. लिखा है Where did Maya start looking for the cat? कहाँ देखा माया ने cat को? Under the bed. Okay. Where was the cat? अब cat उसको कहाँ मिली? On the tree. Okay, इस तरीके से. So the words that combines with a noun or a pronoun to form a phrase are termed as prepositions. They show relationship. Of course, देखिए कौन कौन से preposition को हम कब यूज करते हैं. जैसे सबसे पहले at for the specific time. कोई टाइम स्पेसिफिक है कि आप इस टाइम पे वो काम करना है या आप उस जगह पे स्पेसिफिक हो, चाहे वो टाइम हो चाहे प्लेस हो, तो हम at लगते हैं. At this station, at this platform, at this ये, at this o'clock you have to come. So जैसे लिखा है टाइम के साथ at 2 o'clock, at dawn, at noon, at night, at sunshine, at sunset, इस तरीके से. फिर इन लिखते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइम, जब हमें टाइम नॉन स्पेसिफिक बताते हैं. जैसे ड्यूरिंग अ डे, अब दिन में आप कभी भी आ रहे हो या जा रहे हो. जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून. अब इन द मॉर्निंग में आप कब आओगे या इन द आफ्टरनून में आप कब आओगे नहीं पता. फिर मंथ है, जैसे जनवरी है, फेब्रुवरी है, उसके साथ इन लिखते हैं. इन जनवरी, इन फेब्रुवरी, in 2010, in 2015. years, months, season है, in summer, in winters, तो हम इन लगाएंगे. long period of time, in a century है, in a past है, तो हम इन लगाएंगे. so in days के साथ भी लग रहा है आपका, मतलब days के साथ नहीं लग रहा है, during a day लग रहा है. days के साथ हम लगते हैं on. डेट और डेट्स के साथ ध्यान देंगे, दोनों डी से याद रख सकते हैं, दोनों के साथ हम लगाते हैं on. so on Sunday, on डेट लिख दी पूरी 24th of March 2013, इस तरीके से. सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आइए इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं. लिखा है इट रेन 2 o'clock इन द yesterday. He saw me in May. उसने मुझे देखा कब? मई में देखा. I will come there on Tuesday. मैं कब आऊंगी? ट्यूसडे को आऊंगी. कैन वी मीट ऑन
सैटरडे, इस तरीके से ऑन लग गया। नाउ एक्सरसाइज नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लगाना है, ऑन लगाना है, इन लगाना है, एट लगाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा है माई क्लास स्टार्ट, मेरी क्लास शुरू हुई कब, इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो हम इन लगाएंगे। ही सेंड अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मेरा जब बर्थडे था तो गिफ्ट भेजा गया मुझे। ही ऑलवेज वेक अप, कब, 5 o'clock, सो कब एक्यूरेट टाइम है, सो हम क्या लिखते हैं, एट, ओके, एट 5 o'clock। आई फील गुड, डिनर टाइम, सो अब डिनर टाइम लिख दिया, हमारा टाइम आपको मेंशन कर दिया है कि कौन सा टाइम है, डिनर टाइम के बारे में बात हो रही है, सो एट डिनर टाइम, मुझे डिनर टाइम पे अच्छा लगा, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अभी ये तो हमने देख लिया इन, एट, ऑन। और भी प्रपोजिशन है जिसको हम देखते हैं, जैसे अंडर बताते हैं जब वो चीज नीचे है, ऑन जब वो चीज उसके ऊपर रखी है, इन जब वो अंदर है, नेक्स्ट टू मीन्स उसके बाद में, इन फ्रंट ऑफ मीन्स जब वो आगे है, बिहाइंड मीन्स जब वो पीछे है, बिटवीन मीन्स दो चीज के बीच में है, और अबव मीन्स ऊपर है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपने बताना है कि ये बॉल कहाँ है, बिहाइंड है, बॉक्स के पीछे है। नेक्स्ट ये है इन द बॉक्स, ये नेक्स्ट टू, ठीक है, ये नेक्स्ट टू है, ये इन फ्रंट है, बॉक्स के आगे है वो। फिर ये है आपकी कहाँ पे, नियर द बॉक्स, ओके, इस तरीके से आ सकता है। फिर अच्छा ये जो बॉल है ना, ये बिटवीन है, ये है नेक्स्ट टू, दिस वन इज नेक्स्ट टू, दिस वन इज बिटवीन बॉक्स और ये एनिमल के बीच में बॉल है, और यहाँ पे बॉल है ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर है। अब देखिए कुछ और प्रपोजिशन हमारे लिखे, लुक एंड रीड लिखा है, द बॉय इज सिटिंग विद हिज मदर, अपनी मदर के साथ वो बैठा है। नेक्स्ट शी इज पिकिंग बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से वो बुक्स पिकअप कर रही है एक एक करके। नेक्स्ट शी गॉट अ ड्रिंक आफ्टर जिम, उसको जिम के बाद एक ड्रिंक लेनी होती है। नेक्स्ट द टेम्पल इज ऑपोजिट द स्कूल, स्कूल के ऑपोजिट है। द डॉग इज अमंग द बॉयज, द मैन इज रनिंग अक्रॉस द रोड। सो इस तरीके से आपको पता चला कैसे लिखना है। आइए जैसे यहाँ देखिए, द किटन इज, फिल इन द ब्लैंक, द चाइल्ड, नियर द चाइल्ड, ठीक है, उसके पास में है। नेक्स्ट आई ब्रॉट मेडिसिन, आपने मेडिसिन खरीदी कहाँ से, फ्रॉम द मेडिसिन स्टोर, और फ्रॉम द स्टोर ही गॉट अ ग्लास ऑफ मिल्क, कब मिलता है, ही गॉट, बिफोर या आफ्टर, आफ्टर एक्सरसाइज। शी और द स्कूल इज, कहाँ है स्कूल, बिटवीन, बीच में है आपके, द टेम्पल, द कैट इज, अब कैट कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ द डॉग। तो इस तरीके से हमारी ये प्रपोजिशंस को आप यूज करेंगे। और भी लिखे गए हैं, और भी एक्सरसाइज नंबर 4 में देखिए आपके लिए क्या लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रपोजिशंस। जैसे लिखा है दे प्लेड विद कलर्स, ऑन होली या इन होली या एट होली, ऑन होली। नेक्स्ट आवर क्लास स्टार्ट एट 9 o'clock. Next the students are in the class, so we will write in. Next the mouse is, mouse कहाँ है, in the box, box के अंदर है, ठीक है, सो इन लगा देंगे। नेक्स्ट द कॉक इज, कहाँ पे है, एट, इन, ऑन द रूफ पे है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, ठीक है, इस तरीके से फिल करना है। अब और बहुत सारे हमारे लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अब ये फिलअप्स के फॉर्म में है, आपके लिए पूछा गया। फर्स्ट लिखा गया है, देखिए द बॉयज आर स्विमिंग, कहाँ कर रहे हैं, इन द रिवर, ठीक है। द डॉग इज सिटिंग, सिटिंग कहाँ पे बैठा है, अंडर द कार, कार के नीचे बैठ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम, दीज आर द 3 पॉकेट्स, fill in the blank this pant, so pockets in the pant, pant में है आपकी। he is standing, कहाँ पे खड़ा है, at the bus station और at the bus stand, at आ गया, ठीक है। next the books is on the table, table के ऊपर है, great। अब यहाँ पे भी देखिए ऐसे ही करना है, in, on, at लिखना है। जैसे लिखा है we are visiting the zoo, कब, on Saturday। next I got the dance class in the evening। next I was born on, कब born हुए, 4th of December 2002। we play with colors on Holi, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे भी क्या करना है, इनके फीमेल्स एनिमल्स के साथ मैच कर देना है। जैसे किंग, क्वीन होती है ना, ठीक है,
आपके पास कॉक हैन होती है, गूज गीज होता है, ठीक है, इस तरीके से हमको ऐसे मैच करना है। ग्रेट, ओके, सो यहाँ पे हमारी ये क्लास हो जाती है फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। टिल देन, बाय बाय।